Parliament is a legislative body that makes laws of a country. It consists of elected representatives known as members of Parliament who debate and vote on bills. Our participants will assume the roles of elected representatives navigating the complexities of legislation and governance. Now let's begin with the first reading. Honorable members of Parliament, it is with immense gratitude and a profound sense of responsibility that I accept the role of Speaker of the House. I am deeply honored by the trust you have placed in me, and I pledge to fulfill this role with fairness, impartiality and respect for the principles of democracy. As Speaker, it is my duty to ensure that the debates in this chamber are conducted with order, dignity and respect. Our role here is to present the voices of the people, and it is crucial that we engage in constructive discussions that reflect the values and aspirations of the citizens we serve. I look forward to working with all of you to uphold the values of democracy, transparency and accountability. समान नागरिक संहिता यूसीसी एक राष्ट्र एक चुनाव और दो बच्चों की नीति पर विचार विमर्श हमें एक मजबूत और एकीकृत भारत की ओर ले जाए। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां न्याय और समानता हर नागरिक के लिए सुनिश्चित। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार हमारे लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और समग्र रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक कदम। अब बात करते हैं दो बच्चों की नीति, जो हमारे देश की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, बल्कि हमारे संसाधनों के उचित वितरण और संतुलन की दिशा में एक कदम। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि इन सुधारों के माध्यम से हम एक विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करें। UCC Uniform Civil Code Protection of Minority Rights. UCC would undermine the rights of religious and cultural minorities. They believe that personal laws based on religion are an integral part of the cultural identity and autonomy of minority communities, and any attempt to impose a uniform code would infringe upon their rights to practice and preserve their customs and traditions. The UCC in India has many potential disadvantages, including first, religious freedom. A UCC would violate the rights to practice religion as guaranteed by Article 25 of the Constitution. Second, cultural diversity. Third, social unrest. Access will promote the tendency of centralization in Indian politics. Child policy. The restricted child policy will create a shortage of educated young people needed to carry on India's technological revolution. There is one law for one member of a family and another for another. In the same house, can such a house run? No, it cannot. All the members are equal, and to further enhance the equality, we want to introduce UCC. That means for every person, every citizen, there will be one law. The supreme law of our country, our constitution, also possesses UCC, which is mentioned in Article 44, and in that it is written, the state should endeavor to secure for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India. UCC has numerous and far-reaching benefits. UCC promotes national integration as it fosters unity among citizens, transcending religious and cultural difference. In today's India, because of some religional practices, women are being exploited. As we can see from Ramabai case of 2000, Puni Muhammad case of 2022 against polygamy, Shah Khan case of 1985, Ruxana case of 2015, Shaila Banu case of 2017 against triple talaq, Gangabai case of 1974, Kalyani case of 2019, Nazma Bibi case of 2020 against inheritance of father's property. There are so many cases of such type, but still there lie some women who are not even able to file a case in the court. How can we tolerate this? How can we tolerate our mothers and our sisters being exploited? So UCC became the necessity for empowerment of women. UCC will also end up the communal discrimination, as there will be equal laws for all citizens regardless of their religion,
regardless of their community. It would end up the unequal treatment under personal laws. UCC will also reduce the litigation, as the major reason of litigation is the conflict between personal laws. It has become a so big problem in India that India's judiciary faces over 30 million pending cases, and out of these, 50% are only of family disputes. Reduce of litigation will benefit our judiciary because a faster and a qualitative delivery would take place, thus increasing public trust in legal system, and above all, it would promote social harmony and stability. Commission reports 2022 recommended UCC's implementation. In conclusion, UCC is a vital step toward strengthening our democracy, ensuring social justice, and empowering citizens. So let us unite to build a more equal, just, and harmonious India. I invite the first argument to be presented. Honorable Opposition. How could the ruling party can tell that India's situation is well to do now? Practices of polygamy, the practices of human trafficking, child marriages, there are so many problems. So as a solution of these problems, we want to implement A UCC. report by Kashmir Observers, which was released in March 2024, tells us that the UCC is neither necessary nor desirable. I would like to ask the opposition, how will you define this report that says it's not desirable? As the case I have mentioned, we want a solution for these now. तो ये पूरी इंडिया की आप बता कैसे रहे हो? Implementing UCC would cause social distress, that is, revolts and revolts within state among various religious groups. How could you deny them or stop them? With UCC, we will also implement some schemes to educate the people about UCC. For example, प्रधानमंत्री जन समानता जागरूकता योजना. Population है वो 70% ही educated है, 30% is not educated, and India is a very diverse country. नहीं 77.70% है, उससे आगे हम बढ़ते हैं. हम यूसीसी को एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. हम उसको स्टेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हमारे देश में इतना बड़ा डिस्ट्रेस ना हो. रही बात की इतनी जनसंख्या है, अलग अलग हिंदू की इतनी, मुस्लिम की इतनी, सिख की इतनी, ईसाई की इतनी, तो क्या हमने जब ट्रिपल तलाक हटाया, जब इनहेरिटेंस वाला केस लेके आए, तब भी तो हमारी वुमेन्स, तब भी तो सोशल हार्मोनी के लिए लोग खड़े हुए थे. तो यूसीसी के लिए, इक्वालिटी के लिए लोग क्यों नहीं खड़े होंगे? जब भी डिस्ट्रेस मैनेज हुआ था, आज भी डिस्ट्रेस मैनेज. Safeguard citizens' right to privacy and choose in matters of marriage, divorce and inheritance. आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, चाहे आप टोपी लगाएं या आप तिलक लगाएं, लेकिन चलना तो आपको सड़क के बाईं तरफ ही पड़ेगा. मैं रूलिंग पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो यूसीसी है वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को खत्म कर देगा, इस पर उनकी क्या राय है? हम आप 18 साल की एज के बाद चाहे कोई रिलीजन फॉलो करो, स्टेट उसमें आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपके उस रिलीजन की माल प्रैक्टिसेस की वजह से अगर किसी और का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो स्टेट डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा. How will the UCC violate the Article 25 to 30? आर्टिकल 25 और 30 में कल्चरल राइट्स के बारे में बात की गई है और इसमें ये नहीं कहा गया कि आप अपनी मानो मत, लेकिन आप ये उस राइट्स में जो वॉयलेटेड करते हैं ना वुमेन के राइट्स या किसी कोई माल प्रैक्टिस उसे फॉलो ना करें, इसमें ये यूसीसी में कहा गया है और सबको इक्वालिटी देने की बात की गई है. The malpractices or social diversity which is happening among females. There was a case जहाँ पर एक हिंदू ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था जस्ट बिकॉज उसको 4 वाइफ्स रखनी थी पॉलीगैमी सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो क्या यहाँ पे अलग अलग वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है अलग अलग उसके लिए? हम सबको सोशल हार्मोनी और उसके लिए हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं स्टेजेस पे, ताकि किसी के साथ भी बुरा ना हो. हम किसी भी रिलीजन के अपोजिशन में नहीं जा रहे हैं, हम सोशल हार्मोनी प्रोवाइड करना चाहते शादी हैं. सिर्फ एक लड़का नहीं लड़की भी करती है, तो लड़की की भी तो चॉइस होती है कि वो मना कर सकती है शादी करने के लिए. जैसे हमारे अपोजिशन लीडर ने मैरिज की बात की कि लड़की की भी चॉइस होती है, बट कुछ रिलीजनल प्रैक्टिसेस की वजह से वो चॉइस शायद पूछी ही नहीं जाती. इसीलिए हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि इवन एक गर्ल को भी राइट मिल सके. इस सिचुएशन में एक इंसान का 4 शादी करना लीगल होना चाहिए या 18 साल से कम उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए. सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में फीमेल मेल के कंपैरिजन में आधे से कम हिस्सा मिलना लीगल होना चाहिए और मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह
मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। ये एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी में होना चाहिए या नहीं? ये सभी सवालों का समाधान एक है और वो है यूसीसी। आप ना ही पॉलीगैमी को गलत कह सकते हैं और ना ही सही। ये हर रिलीजन की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। हम बोल सकते हैं कि 4 शादियां करना गलत है, पर वो उस रिलीजन की अपनी चॉइस है। इन्होंने चॉइसेस की बात करेगी, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं कि वो यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। रही बात पॉलीगैमी सिस्टम की, तो जो लोग पॉलीगैमी से हट के बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर कजन मैरिज अलाउड नहीं है और साउथ इंडिया के वहाँ में कजन मैरिज अलाउड है हिंदू के अंदर ही। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे इंडिया को। ये धीरे धीरे करके हमारे इंडिया को हम टुकड़ों में बंटने नहीं दे सकते, इसीलिए हम यूसीसी चाहते हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ये लोग किसका लॉ यूनिफॉर्म करेंगे? हम मेल और फीमेल, रिच और पुअर, किसी भी कास्ट के लिए यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि हम किसी भी रिलीजन को ये नहीं बोल रहे कि आप सभी को शादी करनी है तो आप 7 फेरे लो। आप लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो भी जैसे भी प्रोसीजर्स हैं वो सब कीजिए। इंडिया रिस्पेक्ट्स दैट, but India also respects the society and India will not tolerate any injustice in the society. You don't have given the answer of my question. I asked, किसको देंगे ये राइट? मेजॉरिटी को या माइनॉरिटी को? I repeat, मैडम स्पीकर, हम ये राइट इंडियन सिटीजन्स को देंगे। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब इंडिया के अंदर आते हैं और हम सब इंडिया के एक सिटीजन हैं। मेजॉरिटी जो है उसी के लॉस थोपे जाएंगे माइनॉरिटी पे, और चेंज तो आ नहीं सकता है रिलीजन प्रैक्टिसेस में। आप लोग इतना बड़ा चेंज तो ला नहीं सकते हो। और माइनॉरिटी नहीं, हर एक के पर्सनल लोगों को फिल्टर करेंगे हम सोशल हार्मोनी के लिए। यहाँ पे ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है कि सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी का साथ देंगे, माइनॉरिटी का साथ देंगे। हम लोग सबको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और सबके पर्सनल लोगों को फिल्टर करेंगे, जो माइनॉरिटी में सही है वो सही है या मेजॉरिटी में सही है। सबके लिए सही सही होता है, गलत में यूँ नहीं होता कि मेजॉरिटी है तो सही को गलत कह देंगे या गलत को सही कह देंगे। Still or rejected. So let's proceed to vote now. Those who are favoring UCC, please raise your hand. I urge Honorable Public Standing Committee to maintain the conclusion of the votes for the results at the end. माननीय संसद सदस्य, मैं आज एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे लोकतंत्र की संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़ा हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 1951 से 1967 तक हर राज्य के विधानसभा व लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1967 के बाद यह चक्र टूट गया। आज की स्थिति में हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे न केवल विकास कार्य प्रभावित होता है बल्कि सरकार और प्रशासन को भी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहना पड़ता है। बार के चुनाव में भारी मात्रा में सरकारी धन खर्च होता है। सरकारी कर्मचारियों व पुलिस को चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहना पड़ता है। राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में सरकारी योजनाओं को लागू करने में देरी हो जाती है। इस कारण सभी लोग एक समय पर उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इसका उदाहरण है पिछले महीने सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना, जिसको भारत के अधिक से राज्यों में लागू कर दिया, परंतु हरियाणा व जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के कारण इस योजना का लाभ वहां के लोगों को उठाने में देरी हो रही। पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया व आम जनता का ध्यान उसी एक राज्य की तरफ खींचा चला जाता है। वे सभी बाकी राज्यों में हो रही समस्याओं को नजरअंदाज कर देते। जब चुनाव एक साथ होंगे तो जनता का ध्यान केवल एक ही समय पर चुनाव पर होगा, जिससे मतदाताओं की भागीदारी और जागरूकता बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत बनेगा। क्या आज हम जिस संविधान का पालन कर रहे हैं वह मूल संविधान है? अगर आप हाँ कहते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें 30 से भी ज्यादा बार संशोधन किया है। अब अगर कोई संविधान को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए संशोधन करता है तो आप इसे संशोधन कहेंगे या सुधार? Stand for debate. I invite the first question to be raised. Yes, honorable member. Honorable Speaker, ma'am, I want to ask how will they synchronize the elections? मैं अपोजिशन पार्टी को बताना चाहता हूँ कि हम एक अपॉइंटेड डेट इशू करेंगे। इसके बाद जितने भी इलेक्शन होंगे वो 2029 के इलेक्शंस में मर्ज कर दिए जाएंगे, और अगर किसी भी कोई भी इलेक्शन का पीरियड उससे 6 मंथ के अंदर फिनिश हो रहा है तो उसे हम 6 मंथ की इलेक्शन देंगे। What will happen if the central or state government falls in the middle? In such a situation, will there be a re-elections every state, or will
president's rule imposed. माननीय महोदय, जैसे हमारे ऑपोजिशन का मानना है कि अगर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है तो क्या होगा, इसके अंदर ही इलेक्शन होंगे और जो प्रेसिडेंट रूल है वो जब लगेगा जब इलेक्शन के अंदर भी कोलैप्स कर जाती है गवर्नमेंट। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो सभी इलेक्शंस हैं वो एक ही अपॉइंटेड डेट में होंगे, या फिर मतलब कैसे आप उनको एडजस्ट करवाओगे, एक मंथ के अंदर, 2 मंथ, कितने पैचेस के अंदर, कितने मंथ्स के अंदर? महोदय, इनका मानना है कि अगर री इलेक्शन कितने पैचेस के अंदर होंगे, री इलेक्शन मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर, सॉरी इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर फिनिश हो जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर। पहली बात तो ये कि पूरे देश में अगर आप एक साथ इलेक्शन करवा रहे हैं तो हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसमें धन खर्च होगा। दूसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है तो हमें री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, उसमें भी धन और समय दोनों व्यर्थ होंगे। तो पहली बात तो ये कि समय, धन और संसाधन अगर बचेंगे तो वो बहुत आगे 6, 7, 9, 11, 12 और 13 लोकसभा जल्दी डिसोल्व हो गई। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी ये होना बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर इतनी फ्रीक्वेंटली लोकसभा डिसोल्व हो रही है तो हमें बहुत बार इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर इतनी बार इलेक्शन करवाए ही जा रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा? डिबेट करते हैं तो इलेक्शंस करंट सिस्टम के कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और पार्टीज के डिसॉल्व होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। करंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा होते हैं और वन नेशन इलेक्शन में कम चांसेस हैं। Members, I am again inviting you to have to address me according to the rules of parliament. So please take care for the next time. ऑनरेबल स्पीकर, मैं ऑपोजिशन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर दिया तो इससे आप क्या गारंटी दे सकते हो कि कम इलेक्शन होंगे? जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि करंट सिस्टम में ज़्यादा बार गवर्नमेंट डिसोल्व हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट इतनी फ्रीक्वेंटली डिसोल्व नहीं हो। वन नेशन वन इलेक्शन ये कैसे करवा सकता है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ। इलेक्शंस के सिंक्रोनाइजेशन टूटने की शुरुआत हुई थी, वो इन्हीं की सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के कारण था। और वन नेशन वन इलेक्शन का मेन मोटिव यही है कि जब हमारे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तो उसकी वजह से हमारे देश में जो चल रही शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है वो खत्म तो ये डर है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के कारण इनका कहीं बैकलाइनिंग फेज ना आ जाए इनकी पार्टी का। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इंडिया अभी भी एक फेडरल कंट्री है और फेडरलिज्म का सबसे मेन पॉइंट होता है अकाउंटेबिलिटी। जब हमारे कंट्री में बार बार इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट को बार बार अकाउंटेबल ठहराया जाता है। क्या आप अकाउंटेबल ठहराए जाने से डर रहे हैं? आपने कहा कि अकाउंटेबल होने से हम डर रहे हैं, तो महोदय मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस करवाएंगे तो उसकी वजह से एक सरकार की अपने सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ना कि घटेगी। हम कह रहे हैं कि रेगुलर इलेक्शंस करवाइए, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस जैसे आज हो रहे हैं उस तरीके से गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल है। और हम सब जानते हैं कि DPSPs में जो लॉज हैं उनके लिए जो सिटीजन्स हैं वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ऐसे सिचुएशन में जब वो देखते हैं कि गवर्नमेंट दूसरी स्टेट्स में कैसा काम कर रही है उसका प्रभाव साफ साफ हमारी स्टेट्स पे भी पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट चूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि IDFC की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं तो चांसेस है कि 77% लोग एक ही गवर्नमेंट को वोट देंगे। लेकिन वहीं अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो चांसेस 66% पे आ जाते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि लोगों की प्रेफरेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को देख के। जैसे कि इनका मानना है कि अगर लोकसभा के अंदर जो पार्टी है वही पार्टी विधानसभा के अंदर भी आएगी, पर हम इसको डिनाई करते हैं। दिल्ली के अंदर 2014 और 2019 के अंदर लोकसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट की और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की, और ऐसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर भी लोकसभा के अंदर डिफरेंट पार्टी की और विधानसभा के अंदर डिफरेंट पार्टी की। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल बाद इलेक्शन हुए थे लोकसभा के बाद, उसके अंदर भी बीजेपी जीती थी। तो इसका सीधा समान है जिस पार्टी के अंदर कम होगा वो विजय बनी। हमारी इलेक्शन कमीशन, लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग एंड सुशील चंद्र, इन सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि इंडिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। हमारी इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाता है। जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं धन की बचत होगी, धन की बचत होगी। मैं ये बता दूं इलेक्शन एक डेमोक्रेसी के सोल होते हैं। अगर ये इलेक्शंस में पैसा बचाने की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है। इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हमें पैसे की तरफ ना देखकर ये देखना चाहिए कि इलेक्शन एक फ्री और फेयर वे में हो रहे हैं, ना कि ये कि हम कौन से इलेक्शन से कितने पैसे बचा पाए। बीच में खाली पैसे के लिए नहीं बोला मैंने, और भी पॉइंट्स बोले थे जैसे विकास कार्यों की निरंतरता और वोटर फंडिंग और वोटर टर्नआउट। तो खाली पैसे हम नहीं बचा रहे, हम और चीजें भी लाते हैं। गवर्नमेंट स्टेबल बनेगी, एफिशिएंट बनेगी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और काउंटेबल भी बनेगी।
लेकिन जब ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाएंगे तो दोनों के साथ इलेक्शन होंगे, उस वक्त तो कोई भी लॉ नहीं बना पाएगा। एक वक्त के लिए हमारी कंट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। क्या ये किसी भी तरीके से सही है? इलेक्शन होंगे तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो खाली कुछ टाइम पीरियड के लेकर कि इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन की डेट रिजल्ट तक। हमारा कहने का मतलब ये है कि एक फेज के लोग एक बार जाएंगे और एक बार में ही वो दोनों टाइप की गवर्नमेंट के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। इससे उन्हें बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। सेंटर में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो क्या सेंटर में री इलेक्शन करवाएंगे? और क्या वो जो इलेक्शन का टेन्योर है वो जब तक रहेगा? सपोज हम मान लेते हैं कि 3 साल गवर्नमेंट ने रूल किया और उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई, तो क्या वहां पे पूरे सेंटर में, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे और जब स्टेट के इलेक्शंस होंगे तब फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे? क्या इलेक्शंस इतना बड़ा मजाक बन के रहेंगे? 23 साल से कोई हमें प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन देखने को नहीं मिला। Structures get aggravated and problems like unemployment increases. As a part of solution, we have introduced the bill for two-child policy. Implementing two-child policy in India would lead several advantages to our country, like population control. It can help stabilize the population growth rate, addressing the challenges of overpopulation, resources depletion, and environmental degradation. Social implications: decreased family support. Smaller families will leave elderly parents with limited support. Increased burden on women. Women bear the responsibility of caring of elderly parents and in-laws. Ineffective population growth. India's population grew from 548 million in 1976 to 1.3 billion in 2010. यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक इंडिया की रिपोर्ट है यूथ इन इंडिया, जो रिपोर्ट 2022 में आई है, जो ये कह रही है कि एजिंग पॉपुलेशन 2036 तक 12.5% हो जाएगी और सेंचुरी के एंड तक और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है वो डिक्रीज होगी और उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगी। इंक्लूडिंग उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जिसमें ये बात बताई गई है कि इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे टू चाइल्ड पॉलिसी के। और टू चाइल्ड पॉलिसी के साथ साथ हम पॉपुलेशन एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ कुछ और इंसेंटिव्स भी लेके आएंगे, जैसे वृद्ध स्वास्थ्य बढ़ाओ योजना, जिसमें अगर हम एजिंग पॉपुलेशन के हेल्थ केयर में डेवलपमेंट लेके आते हैं तो इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर इंडिया। मैडम स्पीकर, राजस्थान में टू चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, जबकि वहाँ पर इस पॉलिसी का कंपल्शन नहीं था। आफ्टर ऑल ये कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और स्टिल वहाँ पर 412 मेंबर्स को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी फेल हुई थी, हम 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं मांगी, हम 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की बात करें, ना कि 1 चाइल्ड पॉलिसी। The government would offer incentives to families with 2 children, such as housing subsidies, tax rebates, and free health care. Penalties: a government could impose penalties on families with more than 2 children, such as barring them from government jobs and welfare schemes. The votes has been concluded. The first bill for uniform civil code has been passed by the House with 66.6% members supporting it. One nation, one election has been passed too, with the 63% members favoring for it. Two-child policy has been passed with 64% members supporting it. Today's session, it has been productive, and I thank all of the members for their contribution. With no further business on the agenda, I declare the House adjourned. Signed as. The debate, the Lok Sabha vote on the bill. If approved, the bill is sent to the Rajya Sabha for further discussion and approval. If the Rajya Sabha suggests amendments to a bill that originated in the Lok Sabha can accept or reject these amendments. After a bill has been passed by both the houses of parliament, it is sent to the President for assent. The President has 3 options. The President may approve the bill, after which it becomes law. The President may withhold assent, effectively vetoing the bill. This is known as absolute veto. The President can return a bill to Parliament for reconsideration. If both houses passes the bill again with or without amendments, the President must give assent.
members for your active participation and engaging participation. Today's mock parliament has demonstrated the power of constructive dialogue and collaborative problem solving. We congratulate our participants on their outstanding performance and commitment to democratic values. Until next time, farewell and may the spirit of democracy continue to inspire us all. Jai Hind, Jai Bharat. And all the members of the parliament who are sitting there for the successful presentation of the mock parliament. फर्स्ट जो रूलिंग अवार्ड आ रहे हैं, बेस्ट रूलिंग अवार्ड अर्पिता, बेस्ट अपोजिशन अवार्ड आ रहा है लक्षिका। ये जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, टू चाइल्ड पॉलिसी, आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसा सिंपल सा टॉपिक है? ना बेटा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स पे हमारे एग्जीक्यूटिव जो भी सुप्रीम है वो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसके बाद भी आप लोगों ने इतना अच्छा रिप्रेजेंट उसको किया, ये आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही अप्रिशिएबल रहेगा। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बेस्ट फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। डिग विद इट एक्टिविटी होती है। एजुकेशन सिर्फ हमारी बुक से रिलेटेड नहीं करती कि क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, आपने आंसर कर दिया। इस तरह की जो भी एक्टिविटी है बेटा आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम आएगी इन फ्यूचर जब भी आप इंटरव्यू फेस करोगे। आई होप, मैं जानता हूँ सभी आप लोग ग्रुप ए सर्विसेज में ही मेरे को मिलोगे, तो वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर पाओगे ना। और ये जो एक्टिविटी होती है वो आप लोगों की पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के लिए कि आप अपने आप को कितना बेटर रिप्रेजेंट कर पाओगे। बिल प्रेजेंटेशन रिवॉर्ड गोस टू अनन्या। थैंक यू।